اتنے عرصے سے جو دروازہ تعلیم کا، علم کا، ہنر کا خواتین پہ بند ہے، اس کو نہ اس نے کبھی نوک ہی نہیں کیا. وہ بس آتی ہے، ایک چھوٹا موٹا سٹیٹمنٹ دے کے چلی جاتی ہے. یا تو مصروف ہوگی اپنی گھریلو زندگی میں، یا ابھی تک ہنی مون منا رہی ہوگی کاؤ گرلز بن کے. آ تو رہی ہے لیکن وی آر ناٹ سیٹسفائڈ. تو یہاں پہ پھر ہماری جو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے وہی نا باپ کا دروازہ کٹانا. تو ہمارے لیے تو باپ کا دروازہ کٹانا پردھان منتری مودی جی اور اس کی کابینہ. اور I request Indian government and those in power to give voice to Kailash, bring him to your جو بہت بڑا inauguration. چلو شاہ رخ خان نے اناگوریٹ کیا، اس کی آواز آئی. Why not Kailash? I mean, کم از کم ایجوکیشن کا ایشو نہیں ہے وہاں پہ. بچیوں کو گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ حق دیا ہے ٹو لیو اے لائف آف اے ہیومن بینگ. لیکن افغانستان میں جس طریقے سے ان کو ڈپرائی کیا ہے، اور ہم نے ملالہ کو اتنا نہیں دیکھا کہ وہ آئے اس پہ بات کرے. تو شاید اس وقت پھر ہمیں ایک باپ کے دروازے پہ ناک کر کے اور ان کو ریکویسٹ کرنا ہوگا ٹو کم اپ اینڈ ٹاک فار دا girls who have been deprived from education. and بندہ ہے جس نے اپنے پوری زندگی کو ایک نوبل کاز کے لیے وقف کر کے نوبل پرائز he won the Nobel Prize for himself and the fellow Indians. اور جو انڈین سوسائٹی میں ہزاروں سالوں سے جو ایک روایت آئی جا رہی ہے جہاں پہ لوگ اپنے آپ سے جا کے والنٹیئر کر کے اچھائی کو بڑھاوا دیتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں. تو کیوں یہاں پہ اتنی بڑی جو اچھائی انہوں نے دنیا کے لیے کی ہے، اس پہ نہ کوئی نیٹ فلکس سیریز آیا ہے، نہ کوئی اس پہ فلم بنی ہے، نہ کوئی اس کو ورلڈ سٹیج پہ آ کے بلا کے کہ وہ مزید بات کرے، کیونکہ ہم ان سے اور سننا چاہتے ہیں. نمسکار دوستوں، میں امبر زیدی اور ایک بار پھر سے آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ رؤف. کافی لمبے عرصے بعد ہمارے شو پر واپس تشریف لائی ہیں. بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈاکٹر فوزیہ. نمسکار. نمستے امبر زیدی، بہت بہت شکریہ مجھے واپس بلانے کا. اور میری طرف سے سب ہندوستان کے بہن بھائیوں کو ڈھیر سارا پیار اور بہت سارا نمستے. تھینک یو فار آلویز ہیونگ می آن یور شو، اور اتنا زیادہ ڈھیر سارا پیار دینے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. بہت بہت شکریہ، اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے. آپ اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں، اور اتنا سارا جو گیان ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ ہم تک پہنچاتی ہیں. ایک بار پھر ہم آج آپ کے ساتھ چرچا کریں گے، اور آج کی جو چرچا کا وشے ہے ملالہ یوسفزئی. تو آپ کو یاد ہوں گی، اور مجھے لگتا ہے سبھی کو یاد ہوں گی، کیونکہ اکثر وہ چرچا میں بنی رہتی ہیں. اور طالبان کی گولی کی شکار ہوئی ملالہ آج دنیا میں بہت بڑا نام بن چکی ہیں، بہت بڑا ستارہ بن چکی ہیں. ہالی ووڈ میں فلمیں بھی کو پروڈیوس کر رہے ہیں. اور انہی کے ساتھ میں جو ایک ان کے کو وارڈی تھے انڈین ایکٹیوسٹ کیلاش ستیارتھی، ان کو شاید آپ بڑی مشکل سے ان کا نام کبھی چرچا میں رہتا ہے. ڈاکٹر فوزیہ، دو نوبل پرائز ونر ایک ساتھ، ایک کو اتنا زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے اور دوسرے کا نام بھی نہیں لیا جاتا، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. میں امبر زیدی، مجھے جب میں بہت زیادہ مس کر رہی تھی کیلاش ستیارتھی اور اس کے کام، اس کے نام کو، ریسنٹلی ہالی ووڈ میں ایک بہت بڑی مووی چرچے میں رہی ہے، دا ساؤنڈ آف فریڈم. اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس فلم کا راستہ روک رہے ہیں اور اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. بہت بڑے بجٹ کی فلم نہیں تھی، لیکن بہت چرچے میں فلم رہی ہے. اس پہ بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز نے بات کی ہے، بہت بڑے بڑے جو ہمارے پاس ٹاک شوز ہے، اور جو مین سٹریم میڈیا ہے انہوں نے اس کو اتنا نہیں ہائی لائٹ کیا. لیکن جو پوڈ کاسٹ والے ہیں انہوں نے وہ بہت چرچے میں رہی ہے یہ فلم. تو وہاں سے میں نے بہت عرصے کے بعد یہ فلم دیکھی، اور جب میں نے اس فلم کے کنٹینٹ کو دیکھا، اور as the movie was progressing, what I was really missing in that movie کہ اس یہاں سے کیا مسنگ ہے. بہت پرفیکٹ فلم ہے، بہت زبردست ٹاپک پہ بنی تھی. پھر مجھے ایک احساس ہو رہا تھا نا کہ there is something missing in that film، اور وہ مسنگ تھا کیلاش ستیارتھی کا نام.
क्योंकि ये फिल्म बिल्कुल इसी मौजू पे बनी थी जिस मौजू पे कैलाश ने नोबेल प्राइज लिया था, और उसने जितना जेन्युइनली कम्युनिटी वेलफेयर के लिए या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया, इस मौजू को अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाया, और बहुत अरसे से वो स्ट्रगल कर रहा था कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या जो बच्चियों की ट्रैफिकिंग है, उसके लिए जान पे खेल के अपने दोस्तों के साथ वो उन्होंने सरवाइव किया है। और लकीली उसका नाम जैसे ही नोबेल प्लेटफॉर्म तक गया, इट शोज अ लॉट के रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में, और उनको मसलन ट्रिब्यूट दिया है, लेकिन उसको फर्दर एज अ सिंबल और एज एन एडवोकेट, ग्लोबल एडवोकेट बना के, सही है हम बात करते हैं ग्लोबल एडवोकेसी में जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, मसलन आपके रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत सारे लोग इंडिया से आके बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं खुद भी सुनती हूँ, बट कैलाश का इसी तरह स्टेज में से एक दफा गायब होना मुझे समझ नहीं आ रही व्हाई, क्योंकि उसकी जो को नोबेल प्राइज विनर थी मलाला यूसुफजई, वो तो आती है बाकायदा हॉलीवुड में, जितने भी इनके शो होते हैं या हॉलीवुड के अवार्ड के प्रोग्रामों में उनको देखा गया, उनके हस्बैंड के साथ उनको देखा गया। उसकी जो फिल्म आई थी स्ट्रेंजर एट द गेट, जो मैंने अभी नहीं देखी, बट मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसके साथ साथ वो उसकी अपनी एक काउ गर्ल में वो अपीयरेंस दे रही है। बट आई डोंट नो कितना तजाद क्यों है कि एक जो बंदा है जिसने अपने पूरी जिंदगी को एक नोबेल कॉज के लिए वक्फ करके नोबेल प्राइज, he won the Nobel Prize for himself and the fellow Indians, और जो इंडियन सोसाइटी में हजारों सालों से जो एक रिवायत आई जा रही है जहाँ पे लोग अपने आप से जाके वॉलंटियर करके अच्छाई को बढ़ावा देते हैं और बुराई को रोकते हैं। तो क्यों यहाँ पे इतनी बड़ी जो अच्छाई उन्होंने दुनिया के लिए की है, उस पे ना कोई नेटफ्लिक्स सीरीज आया है, ना कोई उस पे फिल्म बनी है, ना कोई उसको वर्ल्ड स्टेज पे आके बुला के कि वो मजीद बात करे, क्योंकि हम उनसे और सुनना चाहते हैं वेयर इज दैट मैन, और किस तरह से वो अब एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो पर्दे के पीछे कोई हाईली क्लासिफाइड काम कर रहा है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा, या उसको भी बाकी जो हमारे जो ट्रू हीरोज है, जो इंसानियत को जिस पे फख्र होना चाहिए, जो इंसानों के बीच जिनको होना चाहिए, जो हमारे सेलिब्रिटी हो, उससे ये राइट लेने का स्पेशली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगी कि टू फॉर द कैलाश टू बी इन पब्लिक। हाँ, बिल्कुल, मैं जानती हूँ उनके आस-पास के लोगों को और उनको भी मैं मिली हूँ, तो मैं आपका मैसेज ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी पर्सनली कि डॉक्टर फौजिया इज़ कंसर्न्ड, और वो आप इस तरह की बात रखती हैं आपको लेकर, तो मैं आपकी बात पर्सनली भी पहुँचाने की कोशिश करूँगी। लेकिन एक बात और है डॉक्टर फौजिया, वो ये कि जो भी हमारे नेशनल हीरोज़ होते हैं, जो भी देश के लिए, समाज के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, कहीं न कहीं हमारे यहाँ उनको रिकॉग्निशन बड़ी देर से मिलती है। कितनी बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में नाम है, शायद उनको आज भी वो डिज़र्व जो उनका प्लेस है वो नहीं मिला है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं अंबर इसको ना मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल के साथ जोड़ूंगी। मैंने पिछले लास्ट वीक में अमेडेया नाम से एक फिल्म देखी जो कि मोजार्ट की जिंदगी पे बनी है। अगर आप जब भी क्लासिकल म्यूजिक एरा या जीनियस प्रोडिजी को देखते हो तो आप मोजार्ट्स का नाम आता है, लेकिन मैं अभी तक बोन चिनिंग जो मुझे एक अजीब सी गिन आती है, हाउ द सोसाइटी ट्रीटेड हिम, कि उसकी कब्र तक का नहीं पता, और उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल और पॉलिटिकल नुएंस से गुजर के एक बेचारे को एक ऐसी मौत मिली जहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे एक गड़ा जो एक इज्तिमाई कब्र होती है उसमें उसको डंप करके उस पे चूना डाल के
تو یہ سین میرے لیے بہت زیادہ نرو ریکنگ تھا کہ کیا میں دیکھ نہیں پاتی تھی. اور اسی طریقے سے کیلاش، جب میں نے یہ ساؤنڈ آف فریڈم فلم دیکھ کے میرے ذہن میں بار بار یہ بند آ رہا تھا کہ اگر یہ موضوع ہے اور ہمارے سوسائٹی میں یہ ناسور ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس کا جو سرجن ہے یا اس کا جو ریمیڈی جو فزیشین ہے یا اس کے لیے جو گرو ہے وہ کیلاش ہے، جس نے آ کے آواز اٹھائی، جس نے آ کے اتنے لیول تک اس نے آئی ایم شیور آن دا میرٹ، جو آپ ایک جینوئنلی نوبل کے اسٹیج تک پہنچتے ہو تو اس میں بہت سارے لوگ جینوئن لوگ ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کیلاش از ون آف دی جینوئن نیم. جس طرح ہم انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں آپ نے خود کہا ہے کہ کچھ انسانوں کو وہ مقام نہیں ملتا، اور ہم بہت زیادہ شارٹ سائیڈڈ ہوتے ہیں اس کو پرکھنے میں، اس کو وہ مقام دینے میں. بے شک جو موزارٹس کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہے، یا جس سے سینچریوں میں 17 سینچری سے لے کر آج تک اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو ریپلیس کرنے کے لیے there are not a single name. اور اس کی وجہ سے ویانا یا اس کے جو اپنا جہاں جن ملکوں میں وہ رہا ہے، اس کو آج تک ان محلوں سے جہاں سے وہ گزرا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا ٹورزم انفلکس رہا ہے. ابھی بھی لوگ ان کی موجودیت سے، ان کی جو شانتی انرجی یا ان کے ایگزسٹنس سے، اس سے وہ مستفید ہوتے ہیں. لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، and they're keeping them alive, or I don't know if he himself is keeping him alive. So what is that we can do for Kailash to keep him alive, bring him into the public eyes, اور اس کو وہ ستارہ بنائے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے ان کی زندگی میں. ناٹ اونلی دا چیمپئن آف نوبل پرائز، بلکہ وہ ہمارے روزمرہ زندگی کے بہت سارے نوبل کاز کے لیے شوڈ بی آن دا فرنٹ. کیونکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، ملالہ یوسفزئی واز the girl who was writing a diary گل مکئی کے نام سے، اور وہ آ کے بات کرتی تھی، اور اس کو پھر احسان اللہ احسان جو اسیسن کرنے کی کوشش کی ہے، بٹ سڈنلی وہ سین سے غائب ہو جاتی ہے. اور ڈسپائٹ سو مچ نیگیٹو جو میں ان کے بارے میں پاکستانی میڈیا سے، خیر وہ پاکستانی میڈیا کا نیگیٹو میں بالکل اگنور کرتی ہوں، وہ میرے لیے نیگیٹو ہوتا ہی نہیں ہے ان کی ججمنٹ، بیکاز وہ تھوڑے سے مایوپک ججمنٹ دیتے ہیں. لیکن ملالہ کے لیے آئی ہیو اے ریسپیکٹ فار ہر ایز اے چائلڈ ہو اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو ٹو بی ملالہ. لیکن اس کے پیچھے پھر جو اس کو اتنا بڑا پلیٹ فارم دیتے ہیں اور وہ اتنی زیادہ اس کو مزید گلوریفائی کرتا ہے. شی از اے میڈیوکر going to a college, getting a degree. Maybe a lot of children has given more sacrifice than her, but still, if she came as a name representing all the oppression of the girls in our society, یا جو ہمارے جغرافی پاکستان افغانستان سے. لیکن ابھی دیکھو کیلاش کے لیے جو جگہ ہے، کیلاش کے لیے جو سٹیج ہے، اور کیلاش کا جو ایگزسٹنس ہونا چاہیے تھا افغانستان میں، ابھی جو 2-3 سالوں سے millions of girls are hijacked from the basic right of education، اس کو بات کرنی چاہیے، اس کو آنا چاہیے، کیونکہ that too is a little girls trafficked from the life into the darkness. تو اس کے لیے I think کیلاش is should be، چونکہ ابھی ریسنٹلی فادر ڈیز بھی ہو چکا ہے، فادر ڈیز کے لیے ان کا نام ایز اے فادر آنا ان سب بچیوں کے لیے جو کہ ابھی میں نے بولا نا کہ ان کو اغوا کر کے زندگی کی روشنیوں سے، اسکول سے، اور اس کو تاریکیوں کے ٹنل میں پھینک دینا، that burden too goes on his shoulder. انڈیا میں کم از کم ایجوکیشن کا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ بچیوں کو گورنمنٹ لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ حق دیا ہے ٹو لیو اے لائف آف اے ہیومن بینگ. لیکن افغانستان میں جس طریقے سے ان کو ڈپرائی کیا ہے، اور ہم نے ملالہ کو اتنا نہیں دیکھا کہ وہ آئے اس پہ بات کرے، تو شاید اس وقت پھر ہمیں ایک باپ کے دروازے پہ ناک کر کے اور ان کو ریکویسٹ کرنا ہوگا ٹو کم اپ اینڈ ٹاک فار دا girls who have been deprived from education and been اور ان کو تاریکیوں میں جو ڈالا گیا ہے. تو I think کیلاش ہمارے لیے
वो उसका नाम भी सत्यार्थी, जो एक सत्या का होता है ना लफ्ज, वो जी, दीपक ट्रू। होगा, दिया है जो कि रोशनी दिखा सके। और हमें इंडियन गवर्नमेंट से इंडिया की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग योर प्लेटफॉर्म, उनको जगह दी जाए, उनको बुलाया जाए और उनसे बात की जाए, बिकॉज ही ओ अस दैट आफ्टर ऑल द गुड वर्क ही डिड वेयर ही चैंपियन द नोबेल प्राइज। एब्सोल्युटली। आपने इंडियन गवर्नमेंट की बात की, मोदी जी का तीसरा टर्म वापस शुरू हुआ है और अफगानिस्तान के साथ भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं और एक पीपल टू पीपल कनेक्शन है अफगानिस्तान और इंडिया का, वो बहुत ही खूबसूरत है। क्या उम्मीदें और किस तरह की नए सिरे से आप किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो ये तीसरा टर्म है? मोदी जी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर जो कि बिल्कुल ट्रम्प की तरह लड़ाई के खिलाफ है। मोदी जी को मैं जहाँ से सुनती हूँ, वो हमेशा आते हैं एक चैंपियन ऑफ द एजुकेशन और empowerment of the community, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, exactly it's kind of the प्रधानमंत्री एक बाप की हैसियत हमारे लिए रखता है। वो हमेशा पाकिस्तान को ललकारता है कि आप अगर हमारे साथ मुकाबले में हो तो आके हमारे साथ तालीम में मुकाबला करो, साइंस में मुकाबला करो, टेक्नोलॉजी में मुकाबला करो, स्पोर्ट्स में मुकाबला करो। बीइंग स्पोर्ट्स, अब पाकिस्तान की टीम बेचारी बुरी तरीके से T20 में किक आउट हो चुकी है, एंड आई कंग्रेचुलेट इंडियन जनता फॉर द मोदी थर्ड टर्म्स। और साथ साथ में इंडियन क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम दोनों का जो मैच भी हो रहा होगा अभी, शायद उसके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं। तो मोदी जी इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर जो कि आते बात करते दिल को छूती है। और मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो कि लड़ाइयों के खिलाफ हूँ, और जो वॉरफेयर से आप पैसा कमाते हो मैं उसके भी खिलाफ हूँ, और एजुकेशन को प्रमोशन में मैं खिलाफ हूँ। वुमेन सॉरी एजुकेशन को प्रमोशन की तरफदार हूँ, और उसके खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। और गर्ल्स एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी मैं बहुत ज्यादा उनके लिए कंग्रेचुलेशन करती हूँ और खुश हूँ उनके सारे कामों से। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी खास तौर से बेटियों के लिए और एक ग्लोबल पीस के लिए काम करते हैं और एक ग्लोबल लीडर के तौर पे काफ़ी उम्मीदें उनसे रखी जाती हैं और जितनी भी बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उस पर उनको इनवाइट किया जाता है। अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से देखा जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो अभी फ़िलहाल हालात हैं, पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के रिश्ते बेहतर नहीं हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं, उस सब को देखते हुए आप भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की क्या भूमिका देखते हैं अफ़गानिस्तान में पीस के लिए, शांति के लिए? थैंक यू फॉर आस्किंग मी ये सवाल। इस तरह है कि मोदी जी जो है, जहाँ से मैं देखती हूँ, एक सुपरसोनिक फ्रिक्वेंसी से कुछ सेक्टर्स में इंडिया के अंदर ही वो काम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करने में। और उसने जब एक दफा एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं हर मुसलमान बच्चे के हाथ में अगर एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, देखना चाहता हूँ। इससे वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं कि भाई ये जो है ना लोगों को सिर्फ जीतने के लिए ये बात करते हैं, ही डिडंट मीन इट। लेकिन हम तो नहीं जानते, इंसान की जो दिल की बात होती है वो जुबान पे आ जाती है। तो जो मोदी जी के दिल में है, जो वो मुसलमान बच्चों के वेलफेयर के लिए आते हैं, काम करते हैं, वो जाहिर सी बात है, इज अ प्रधानमंत्री, इज अ फादर फिगर फॉर भारत। और साथ साथ में जो उनके काबीना है जयशंकर जी, उसको भी बहुत ज्यादा मैं फैन हूँ, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एंड मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ जयशंकर, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ अब इंडिया का जो मसला है वो इंडिया तक नहीं है। इंडिया इज अ ग्लोबल वॉइस, चाहे वो G20 समिट में हो, चाहे अभी वो G7 तक आ गए, G7 एब्सोल्युटली। G7 तक वो प्रेजेंस है उनका, जहाँ पे MBS सऊदी का जो किंग है वो कोशिश करता है, दे आर इन G20। लेकिन कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर अ कंट्री टू बी अ पार्ट ऑफ द G7, और जिसके लिए वो बहुत, उसकी जो लास्ट इंटरव्यू मैंने फॉक्स न्यूज पे October 7 से आई थी, पहले 2023 तक, एक महीना पहले, उसमें उन्होंने ये इजहार किया है कि हम
کوشش کریں گے کہ ہم G7 تک جائیں. پھر ظاہر سی بات ہے اگر سعودی آتا ہے تو شاید ابھی اس میں G7 نہیں شاید G8 ہو جائے گا. بٹ اینی ویز یہ جو ڈفرنٹ ویسے ڈاکٹر فوزیہ بھارت G7 کا ممبر نہیں ہے لیکن بھارت کو اسپیشل آؤٹ ریچ سیشن کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پر. جی نا اس کی موجودگیت ہوتی ہے تو ایبسلیوٹلی وہاں ایبسلیوٹلی پرماننٹ ممبر بننا اور وہاں تک ایون پہنچنا بھی جس طرح وہ MBS بولتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے ٹو بی اے پارٹ ٹو بی اے ممبر. اور انڈیا کے لیے بھی اٹس ویری شارٹ جرنی ناؤ کیونکہ وہ اتنے لمبے منزل سے گزر کر جہاں پہ ان کی موجودیت ہے اور ان کے ایگزسٹنس کو ویلیو کیا جاتا ہے. تو آپ کے لیے سرپرائزنگ میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شاید ممبر بھی بہت جلدی بن جائے G7 میں آواز اٹھائیں. اور مودی کی جو ایک سوچ ہے ایجوکیشن لیپ ٹاپ ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں قرآن پاکستان اس کو نگیٹ کرتا ہے. پاکستان جب افغانستان میں ڈیموکریسی تھی تو وہ طالبانوں کو سپورٹ کرتا تھا. چلو طالبان کو سپورٹ کرتے کرتے طالبانوں نے ان کی پیٹھ پہ اب خنجر گھسا کے اسپیشلی ملا یعقوب کا جو ملا عمر کا جو بیٹا ہے ملا یعقوب وہ بہت زیادہ اگینسٹ ہے ان لوگوں کے اس سوچ کے کیونکہ وہ ان کو جو ایک پیٹریوٹک سوچ ان میں ہے وہ گندھاری ماں کی نسل ان کی خون ان کا میکا ہے. تو ایگزیکٹلی اٹس ہارڈ ٹو کائنڈ آف ٹریپ دیٹ انسیسٹرل وزڈم جو کہ اپنے دشمن کو پرکھنے جاننے پہچاننے میں کمال رکھتے ہیں. دوسری بات سے ابھی جو ریسنٹلی اٹ واز اندر بگ نیوز ان دا نیوز جو انس حقانی اور اس کے جو باپ ہے بڑے بیٹے ہیں وہ خلیفہ اس کو بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو اس کا اپنا نام کیا ہے خلیفہ جو ان کے بڑے بیٹے ہیں جس پہ 7 ملین باؤنٹی تھی موسٹ وانٹیڈ پرسن وہ ریسنٹلی حج کے لیے گئے ہیں اور دبئی میں وہاں پہ کنگز اور بہت بڑے بڑے ڈیلیگیٹس کے ساتھ وہ نظر آئے ہیں. تو مجھے کچھ لگتا ہے کیونکہ مجھے فال آف طالبان سے جو میرا پہلا انٹرویو آیا تھا ود انڈین CNN وہ انس حقانی واز اے گیسٹ دیئر اور ادھر بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر لیٹ سپوز امیر المومنین از دا جی جی پنگ دا چیئرمین فار لائف ان دیٹ سینیریو بٹ کنگ نہیں ہے اور سعودی عربیہ میں MBS کنگ ہے لیکن وہ شریعہ لا کرتا ہے تو مے بی افغانستان وڈ بی دا سعودی کم China government where you will have Amir al-Mu'minin as a chairman for life, but there would be more like Sharia things in Afghanistan. تو دنیا تو ابھی بھی اگر کنگ کے ساتھ جو کہ فلی شریعہ ہے لکیلی وہاں پہ اب بکینی بھی ایک بہت بڑا واک ہو چکا ہے سعودی فیشن شو ہوا تھا. جی فیشن شو ہوا ہے تو ہم ہوپ رکھتے امیدیں رکھتے وی نیڈ اسٹیبلٹی. جنگ لڑائی نہیں ہوگی جتنے بھی آپ کٹر پن ہو اس میں وہی ایک چھوٹا سا دیا جلتا ہے آپ اس دیے کی روشنی سے پھر انکریج ہو کے آہستہ آہستہ خواتین کے لیے آزادی کے لیے ان کے ایکسپریشن آف دیئر فیلنگس کے لیے آپ پلیٹ فارم بناتے ہو. تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ڈسپائٹ پاکستان واز سو مچ پرو طالبان اور وہ اس نیت سے پرو طالبان تھا کہ شاید ان کو آنے والے وقتوں میں پاکستان کی غلیظ مقاصد تک پہنچنے کے لیے ایز اے موہرا استعمال کرے. تو ان کی امیدوں پہ وہ پانی پھیر چکے ہیں طالبان. اب وہ جو پاکستان کی جتنی میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے وہ اٹیک کرتے ہیں طالبانوں کو کہ بھئی ہمارے آستین میں پلے سانپ ہے. بھئی تم ہو کون؟ اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتے تم آستین میں پلے سانپ کو کیا دودھ دو گے؟ تمہارے پاس تو خود ہی غربت اور غلاظت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے تعفن سے تمہیں تو خود ڈوب کے مر جانا چاہیے. But I was very happy, pleased with the Taliban diplomacy towards Pakistan. لیکن پاکستان پھر مزید بولتا ہے کہ ہم تو ایٹم بم ہے ہم تو آپ کو اڑا دیں گے ختم کر دیں گے ہم کابل لے لیں گے. بھئی تم اپنا لاہور اور تو ایٹم بم بھی اسلامک ایٹم بم ہے وہ ایسا ویسا نہیں ہے. ہاں تو وہ ان کا جو اسلامک ایٹم بم کو کاؤنٹر پارٹ اسلامک طالبان اور اسلامک ایمریٹس آف افغانستان ان کو بیچاروں کا مذاق بنا دیا ہے. امبر مجھے نہیں پتا آپ کتنی زیادہ پریزنس رکھتی ہے
पाकिस्तानी ट्विटर्स अकाउंट पे, जो वो बेचारे इतने बुरे हालात है उनके, इतने उनकी बेचारों की बनी हुई है, अजीब उनकी सोच है। इमरान खान जेल में है, आर्मी इज इन पावर, इंसान भूख अफलास, कुछ भी वहां पे होप भी नहीं है। जो एक होप होता है इंसानों के पास, वी हैव एज एन अफगान वी हैव होप, वी एक्सटेंड हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप। हमारे पास इंडिया है, वही ना आपके पास, वो जो बोलते हैं ना एक डायलॉग इंडियन है, तुम्हारे पास मेरे पास माँ है। माँ है, हमारे पास धरती माँ है, हमारे पास भारत है, हमारे एब्सोल्युटली। पास हमारे भाई है, हमारे पास एक बहुत बड़ा परिवार है जिसको मैं हिंदुस्तान बोलती हूँ। बांग्लादेश, इंडिया से लेकर पाकिस्तान को स्किप करके डायरेक्ट अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा परिवार है, जो हमारे वजूद के अंदर एक रावण रहता है, एक डीमन है जिसका नाम पाकिस्तान है। उसको खत्म करने के लिए मोदी इज बहुत स्लोली बट श्योरली वो कदम बढ़ाए रहे। इंडिया की जनता हमारे साथ है, इंडिया की जनता अपने गवर्नमेंट और अपने इंस्टीट्यूशन के साथ है, और हम मजीद उम्मीद रखते हैं कि ये लोग जो ये शम्मा, जो ये दीप बुझाए रखे, इनको इसी तरह बुझाए रखे, मुझे नहीं जलाए रखे, रखे सारे। जलाए रखे। आई एम सॉरी फॉर माय हिंदी। तो वो उसके लिए इसी तरह वो झलकता जमकता, और ये जो संजय लीला बंसाली की फिल्म है, क्या नाम है उसका, उसकी उसको मैं देख देख के हिंदी समझ आ जाए। हीरा मंडी दिया सीरीज है अब नेटफ्लिक्स। पता है, हीरा मंडी के लिए सबसे पहला शब्द अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहम्मदुल्लाह मोहिब ने इंतखाब किया था कि ये जो हीरा मंडी है, तो उनको बहुत नेगेटिव लिया। फिर आप उसके जख्मों पे मजीद नमक छिड़कने के लिए आप फिल्म ही बाकायदा इस नाम से लेकर आए नेटफ्लिक्स सीरीज में, फिल्म नहीं बल्कि पूरी सीरीज आ गई है। पूरी सीरीज आ गई है। अब इतनी शरारतें आप लोग करते हैं उन बेचारे लोगों के साथ, तो क्या सरवाइव करेंगे। अंबर ये लोग बहुत ही ज्यादा बेचारे हो चुके हैं। और असल बात तो ये है कि अफगानिस्तान से जो टर्म्स, जो शब्द इनके लिए निकलते हैं, और वो फिर इंडिया के लहू को ललकार के और उस पे मजीद सीरीज बना के, एंड टू शव देम ऑफ विद दैट इज काइंड ऑफ फन। मुझे तो बहुत मजा आता है, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये जो काउंटर नैरेटिव हम बिल्ड करते हैं इनकी गलाजत के लिए, और जो हमारे पास इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट और टीवी, प्रिंट, फिल्म, तो ये बहुत खुशी होती है हम जब आते हैं एज अ यूनिटी, इर्रिस्पेक्टिव फेथ हम प्रैक्टिस करें। हमारे अंदर जो इंसानियत है वो काफ़ी है इन लोगों को ख़त्म करने के लिए। और हमारी भारत धरती, जो हमारी धरती है, जो बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये एक परिवार है, और हम इस परिवार को हम मजबूत रखने और इकट्ठा रखने के लिए सब कुछ करेंगे। और वो सब कुछ हमारे लिए मोदी कर रहा है इंटरनेशनल स्टेजेस पे। जयशंकर की जो बहुत धूमधार धमाकेदार कोट्स होते हैं, नैरेटिव्स होते हैं, उनको मैं सुनने के लिए बेताब हूँ कि वो किस तरीके से फिर दोबारा एंट्री करेंगे, वर्ल्ड स्टेज पे आएंगे और हमें हमारे प्राइड। श्रीलंका गए हुए हैं जयशंकर जी। अच्छा, गए हैं? मैं देखती हूँ उनको, कहाँ पे गए हैं उनको मैं। श्रीलंका। श्रीलंका, ब्यूटीफुल, बहुत खुशी जी, होती है, देखते हैं वो जब आते हैं उनके। जी। अच्छा डॉक्टर फौज़ा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हमने मलाला यूसुफ़ज़ई से बात की, शुरुआत की थी, चर्चा की। मलाला यूसुफ़ज़ई को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, और आज जो लाखों अफ़गानिस्तान की जो बच्चियाँ हैं, जो औरतें हैं, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो ग्लोबल फ्लैग बेयरर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और व्हाटएवर, वो सब के सब खामोश देख रहे हैं, किसी की आवाज नहीं खुल रही। एक लड़की को आपने आसमान पे चढ़ा दिया, और लाखों लड़कियों का किसी को कोई अता पता, कोई सुध नहीं दे रहा। ये सिलेक्टिविज्म, ये दोगली या हिपोक्रेसी कैसे? मुझे ये होना, वही ना मैं बोलती हूँ ना कि आप काउंटर नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हो। देखो, अमेरिका में मैं रहती हूँ, घर है मेरा, और जिस तरीके से यहाँ की सोच को मैं देखती हूँ, लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पावर इन्वॉल्व है अमेरिका को स्टेज से फेंकने में, जिसमें ईरान नाम आता है, जिसमें हमास है, जिसमें लैटिन अमेरिका के ममालिक है, जिसमें रशिया होगा,
बहुत मुश्किल होता है अंबर सोशल डार्विनिज्म या इंटेलेक्चुअल डार्विनिज्म के सीढ़ियां चढ़ने के लिए और आप खुद को वो स्टेबिलिटी में मेंटेन रखने के लिए, डिस्टेबलाइजेशन के लिए। देखो, दुनिया में हमेशा दो पावर्स होगी, एक अच्छाई एक बुराई, और हमेशा अच्छाई के खिलाफ बुराई आएगी और फिर बुराई को कम्बैट करने के लिए अच्छाई, एंड फाइनली जो विक्ट्री होती है, जो फतेह होती है, वो अच्छाई की होती है। इंडिया इज अ विक्ट्री फॉर अस टुवर्ड्स द गुडनेस, लेकिन इंडिया की जो थोड़ी बहुत गफलत है, जिस तरह मैं हम मलाला से शुरू करके उसको पता नहीं काउगल बना के बेचारी को कभी क्या पहना के, कभी कुछ पहना के, उसने क्वीन सुराया की जो ज्वेलरी भी पहनी थी एक ऑस्कर शो में, यहाँ पे वो भी बहुत चर्चे में रही है, बेचारी को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको मसलन हम काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए, वो सारी लड़कियां जो कैलाश हमारे भाई ने सेव किए, और वो हर एक आए बैनर ले कि मैं अगवा होने से बच के, वेयर आर दे नाउ, उनको जिंदगी कैसे वो जी रही है, उन पे सीरीज होनी चाहिए, उनकी स्टोरीज बाहर आनी चाहिए, कैलाश सर को आनी चाहिए। तो आपने कहा ना कि ग्लोबली एक को इतना चढ़ावा दिखा के, जो कि डिजर्विंग भी नहीं है, और उसके मद्दे मुकाबिल जो लोग जेन्युइनली काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों के लिए, हमारे सोसाइटी के मफलूज अवाम के लिए, जो बेचारे जिंदगी की दौड़ में पीछे हैं, उनको लिफ्ट करने में, तो ऐसे लोगों को के लिए आवाजें हम जैसे लोग होंगे। और अगर हम मजबूत आवाजें बने तो वाकई में ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि दिन रात जितने हम मसरूफ रहते हैं अच्छाई को लाने में स्टेज, इसी तरीके से डीमंस या डेविल्स या जो एग्जिस्ट इंडियन कल्चर में, इंडियन मिथोलॉजी में करता है रावण, तो रावण को कम हाथ लेना ही बेवकूफी है। तो इसीलिए मैं ये तो नहीं बोलती कि मलाला रावण है, लेकिन वो बेचारी जितनी मसलन she's kind of a lost kid. She's a child. She used to be a child and she still is a child. और कम से कम वो जो कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है, just because कि वो 2 वक्त की रोटी कमाए, अपने बाप के टेबल पे डाले, और अपने वो पंजाबी शोहर के लिए के साथ घर बसाने में लगी हुई है। समझ इन सवालों का हमें नहीं आता। वही मैं फिर बोलूंगी कि बेचारी ये दुनिया ऐसी अजीब दुनिया है कि जिसपे मोजार्ट्स के साथ जो हुआ है, जिसको एक खबर भी नहीं मिली, जो कि बिल्कुल उसकी कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस का निशान नहीं है, लेकिन फिर ये भी तो देखो ना कि उन मोजार्ट के लिए भी तो एक मेमोरियल बनाया है जिसमें हजारों मिलियन लोग जाते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और उनको जिंदा रखा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और हम अगर पॉजिटिव बातों को जिंदा रखेंगे, और मलाला अगर कुछ भी अच्छा कर रही है, जिस तरह आपने कहा है कि वो अफगानिस्तान में इतने अरसे से जो दरवाजा तालीम का, इल्म का, हुनर का खवातीन पे बंद है, उसको ना उसने कभी नॉक ही नहीं किया। वो बस आती है, एक छोटा मोटा स्टेटमेंट देके चली जाती है, या तो मसरूफ होगी अपनी घरेलू जिंदगी में, या अभी तक हनीमून मना रही होगी काउ गर्ल्स बन के। आ तो रही है, लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे फिर हमारी जो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए वही ना, बाप का दरवाजा खटखटाना, तो हमारे लिए तो बाप का दरवाजा खटखटाना प्रधानमंत्री मोदी जी और उसकी काबीना। और I request Indian government and those in power to give voice to Kailash, bring him to your जो बहुत बड़ा inauguration, चलो शाहरुख खान ने inaugurate किया, उसकी आवाज आई, why not Kailash? I mean, he's a celebrity. We want him. हमें वो चाहिए। और वो कहाँ है? कैलाश कहाँ है? जिस तरह टाइगर अभी जिंदा है, वो अभी जिंदा है। His voice. जी अमर। जी, आपकी आवाज़ चली गई थी। जी, बिल्कुल। और आपने जो बात हाँ। कही कि हमें जो हमारे हीरोज़ हैं, उनको बेटर और बेहतर प्लेटफ़ॉर्म देने की ज़रूरत है, और जो वो डिज़र्व करते हैं, उसको सही जगह पे पहुँचाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो काउंटर नैरेटिव की आपने बात की, वो भी बहुत ज़रूरी है उस पे काम करना।
इंडिया को एज कंट्री, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर के रूप में आके बढ़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब एंटी फोर्सेस आपके लिए इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं, तो काउंटर नैरेटिव लेकर आना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कोई नैरेटिव हो। डॉक्टर फौजिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी-जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी क्योंकि आप बहुत बिज़ी रहती हैं और फिर हम लोगों का टाइम डिफरेंस भी है। बट अगेन जहाँ चाह हमारा है कि नहीं? या वो उसका क्या मतलब है, जहाँ चाह हमारा? वेल, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ओके, अच्छा, सही है। हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वो आपके प्रोग्राम से, आपके कंसिस्टेंटली डिटरमिन्ड रहने से मुझे अंदाज़ा है। और मैं अपने इंडिया के दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, बूढ़ों को, वहाँ की लकड़ियों को, वहाँ के पहाड़ों और वहाँ के चरणों, झीलों को, सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जो प्यार आपने हमें दिया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी हम्बल। और मुझे इतना ज़्यादा जो प्यार मिलता है, मुझे अपने वजूद के होने पे इस धरती पे इसीलिए फ़ख्र है कि मेरे अंदर भारत की मिट्टी है। मैं अपने जोग्राफिया से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। You all matter so much to my heart and my soul and spirit. Keep rocking, और kindly हमारे जो कैलाश के लिए एक कोई सा हैशटैग बनाए, कुछ करे उसको, हमारे हीरो को, हमारे सुपरमैन को, हमारे बाप बड़ों को लेकर आए और उनसे सुने, क्योंकि हमारे तो यही एक रिवायत चली आती है। जब वो तो हमारे गुरु है, वो आके चारपाई पे बैठ के और नीम के पेड़ के नीचे उसके इर्द गिर्द हम बैठ के, बिकॉज वी नीड दैट एनलाइटमेंट, वी वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, ही इज आवर गुरु, और उससे सीखना। और मलाला तो हमें कंफ्यूज कर रही है, वो पता नहीं वो क्या कर रही है, वो हॉलीवुड में है, वो लॉलीवुड में है, वो इंग्लैंड में है, वो मुझे नहीं समझ आ रही वो कहाँ है। वो तो वो बहुत पढ़ रही है, वो एक्टिविस्ट है, समझ में नहीं आ रहा। शी इज़ एवरीवेयर, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। वो हर हर 10 दिन के बाद उसके अंदर एक टैलेंट है जो वो करती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे अंदर एक्टिंग करने की सलाहियतें भी है। वो नागहां सलाहियतें, बेपनाह सलाहियतें जो उसके अंदर है, उसको मशरूत करने के लिए हमारे जो बड़े हैं, गुरु है कैलाश सत्यार्थी, उसको लेकर आए। और आई वुड लव टू जी, शेयर और एटलीस्ट हेयर जल्दी हिम। डेफिनेटली, और आपका मैसेज भी मैं उन तक पहुँचाऊँगी, और डेफिनेटली, और भारतीय सरकार भी सुने, और इस तरह की नैरेटिव बिल्डिंग पे, काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग पे काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया, एक बार फिर से आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता जय की हिंद, जय। भारत माता की जय, जय माता।